My dear viewers, today we are going to do the poem When You Are Old by W.B. Yeats. Poetic devices इसमें कौन सी यूज हुई हैं कौन सी नहीं, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इनको हम डिस्कस करेंगे. बहुत सारी पोइटिक डिवाइसेस इसमें यूज हुई हैं, वो सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे. When You Are Old. The title of the poem is When You Are Old, and it is written by W.B. Yeats, and here we have the poem. When you are old and grey and full of sleep, and nodding by the fire, take down this book, and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of the shadows deep. ये 3 स्टैंजाज इसमें है. तो इस पोएम में पोएटिक डिवाइसेस आज हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहली चीज मैं कहना चाहूंगा दैट दिस पोएम इज अ लिरिक. This is a lyrical poem where in poet expresses, the speaker expresses his feelings, okay, towards someone. This is a lyrical poem, one thing. Then the second thing, we're going to discuss the theme of the poem is what? It is love, it is the rejection of the love, it is the old age, it can be the time, okay, which is moving, which is passing very fast, and it can kill anything. Okay, it changes time, changes anything. So these are the themes of this poem. This poem is basically addressed to W.B. Yeats's beloved Maud Gonne. ठीक है, Maud Gonne उसकी beloved थी. ठीक है, he dedicates this poem to her, and he used to love her very much, but it was not reciprocated. ठीक है, it was a kind of one-sided लव. वो फीलिंग्स माउड गॉन को नहीं थी जो पोएट को थी. जो पोएट फील करता था माउड गॉन के लिए, माउड गॉन शी डिड नॉट रेस्पॉन्ड W.B. Yeats. उन्हें रिस्पॉन्स नहीं किया था. ओके, so the theme of this poem is love, the rejection of that love, regret भी आप कह सकते हो. regret, the poet wants to make his beloved feel regretful of what she rejected, because she had already rejected the love of the poet W.B. Yeats. And of course, old age is also one of the themes of this, how time passes, and it changes everything. It changes every beautiful thing into something different. Okay, these were the themes of this poem. Then we are going to discuss the poetic device, one of the poetic devices which is very easy, and that is alliteration. Alliteration जो है मैंने डिस्कस किया है. मैंने प्रेयर पोएम हमने डिस्कस की, हमने मिरेकल्स पोएम डिस्कस की. आज तीसरी पोएम हम 10th क्लास की डिस्कस कर रहे हैं. इट इज व्हाट व्हेन यू आर ओल्ड. तो alliteration मैंने आपको बताया है क्या होता है क्या नहीं. इट इज अ रेपिटेशन ऑफ the consonant sounds at the beginning of the neighboring words. आप ऐसा कह सकते हैं. तो कहाँ कहाँ हमको ये alliteration मिलता है? You can see here. आप यहाँ पर देख सकते हैं. One is this, glad grace. How many loved your moments of glad grace? ये alliteration है, glad grace. Both the words start with G, and it gives G consonant sound, glad grace. Okay, then moving to the next one. आप आगे जब देखेंगे इसी पोएम में हम देखते हैं bending. Okay, bending down beside, bending down beside, bending और beside दोनों वर्ड्स जो हैं ये शुरू होते हैं बी से, ब साउंड से. सो alliteration is there, and then again we have glowing, no it is not there, bending bars. हाँ, bending bars जो है, sorry, bending down beside, bending down beside, this was the alliteration. Then we have these were the alliteration. ये alliteration की examples थी. और यहाँ पर ऑलमोस्ट दिस इज एंड हिड, और यहाँ पर एक वर्ड ऑलमोस्ट शायद हिज है, हिड हिज फेस, एंड हिड हिज फेस एमिड अ क्राउड ऑफ स्टार्स. फिर जाकर इसमें सिलेबल्स पूरे हो जाएंगे. अगर हिड हिज
फेस है, हिड एंड हिज, द एच साउंड, ह साउंड अगर वहां पर है एच, देन इट इज what it can be um, the alliteration. Okay, then moving to the next one, repetition is another. Repetition is another a poetic device, and a repetition is the repetition of words throughout the poem. जो भी words repeat हुए हों पूरी poem में, जरूरी नहीं कि वो neighboring words हों, ठीक है, पूरी poem में वो 2 lines में भी हो सकते हैं, 3 lines में भी हो सकते हैं, 1 line में भी हो सकते हैं, तो जो सेम वर्ड्स रिपीट हुए हैं दैट इज कॉल्ड रेपिटेशन. तो रेपिटेशन अगर आप देखेंगे तो लव इज वन ऑफ द वर्ड्स व्हिच इज रिपीटेड इन दिस पोएम अगेन अगेन. जैसे यहां पर आप देख सकते हो लाउड, हाउ मेनी लाउड, यहां पर भी देख सकते हैं लव. इसी तरह से यहां पर आप देख सकते हैं लव, तो बहुत बार लव इसमें आया है. तो इट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रेपिटेशन. तो इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ रेपिटेशन इज दिस लव. तो इसके अलावा बाकी वर्ड्स आप खुद देख सकते हैं जो भी वर्ड्स रिपीट हुए हों, ठीक है. यहां पर आप देख सकते हो कि एंड काफी बार रिपीट हुआ है, एंड रिपीट हुआ है, एंड रिपीट हुआ है. ओके, तो इसी तरह से आगे भी यहां पर भी एंड रिपीट हुआ है. आगे भी आप देखेंगे बाकी स्टैंजास में एंड रिपीट हुआ है. और ये रेपिटेशन किस लिए है? टू क्रिएट एन इफेक्ट, इमोशनल इफेक्ट. ओके, दिस रेपिटेशन, एनी पोएटिक डिवाइस, रेपिटेशन आपने देखा, आपने एलिट्रेशन पढ़ा, दे कंट्रीब्यूट, दीज थिंग्स कंट्रीब्यूट टू द इमोशनल इंपैक्ट ऑफ द पोएम. ठीक है, दे कंट्रीब्यूट टू द मीनिंग ऑफ द पोएम. Okay, so these are the examples of repetition. Then moving to the fourth one, we have can say anaphora. Anaphora is also the repetition of the words at the successive lines. ठीक है, successive lines जब same words से शुरू होती हैं, same phrases से शुरू होती हैं, that's called anaphora. तो आप and यहाँ पर देख सकते हो, and nodding by the fire take down this book, and slowly read and dream of the soft look. Okay, this is the example of anaphora. तो आगे चल के आप देखते हैं same thing. यहाँ पर भी आप देखेंगे and loud the sorrows of your changing face, and bending down beside the glowing bars. तो कुछ चीज he wants to emphasize a point. Poet wants to emphasize a point कि जब ऐसा होगा वैसा होगा. तो ये it is what these are the examples of anaphora. बार बार ये repeat कर रहा है किसी चीज को, ठीक है. ये एहसास दिलाने के लिए वो अपनी उस माउडगॉन को ये एहसास दिलाना चाहता है कि how much he loved her. Okay, how much he loved her and how much she is going to regret his love or her rejection of the love, her decision. Okay, so this is what it was, anaphora. Then we have another thing, a rhetorical question. Rhetorical question मैंने डिस्कस किया है पहले. ऐसा क्वेश्चन जो आंसर मांगने के लिए या आंसर के लिए नहीं पूछा जाता है, बल्कि क्यों पूछा जाता है? एक पॉइंट को एम्फसाइज करने के लिए. जैसे यहां पर है, हाउ मेनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस. द पोएट आस्क्स हिज बिलव्ड माउडगॉन, हाउ मेनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस. ग्लैड ग्रेस means that beauty she once possessed when she was young, when she was full of youth. How many loved your moments of glad grace? ओके, कितने सारे लोग थे जिन्होंने तुम्हें अप्रोच किया, जिन्होंने तुम्हें चाहा, जिन्होंने अपना लव, अपनी मोहब्बत उसको एक्सप्रेस किया. when you were beautiful, when you were young, how many loved your moments of glad. कितने ही लोग ऐसे थे जिन्होंने तुम्हें बहुत पसंद किया, तुम्हें एडमायर करते थे. लेकिन ये बेसिकली क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ये आंसर नहीं चाहता है उससे, ये अपने पॉइंट को बताना चाहता है कि देखो कितने ही लोग ऐसे भी थे, बट loved and loved your beauty with love false or true. और कितनों ने तुम्हारे साथ मोहब्बत की, चाहे false था या true था, ठीक है, जो भी था, ठीक है. क्योंकि पोएट उनको समझता था the love she got from other people it was false. फिर आगे कहता है but one man loved the pilgrim soul in you. लेकिन एक शख्स ऐसा था who loved the pilgrim soul in you, और ये खुद की बात कर रहा है, ठीक है. तो ये यहां पर ये पॉइंट को एम्फसाइज करना चाहता है कि बड़े सारों ने तुम्हें मोहब्बत का इजहार तुमसे किया होगा, लेकिन इट वाज ऑल फॉल्स. जो ट्रू लव था, जो स्पिरिचुअल लव था, व्हिच आई हैड फॉर यू, ये कौन सा लव था? व्हिच आई हैड फॉर यू, जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत थी.
सो दिस इज व्हाट अ रिटोरिकल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो आंसर के लिए नहीं पूछा जाता है बट एक पॉइंट को एम्फेसाइज करने के लिए पूछा जाता है. ओके, देन वी हैव देयर इज अनदर पोएटिक डिवाइस, हाइपरबोली. हाइपरबोली भी यूज हुई है. आप ये कह सकते हैं इस पोएम में जो फीलिंग्स हैं, द फीलिंग्स ऑफ लव ऑफ द पोएट, उनको थोड़ा सा एग्जैजरेट किया गया है. हाइपरबोली मींस व्हेन समथिंग इज एग्जैजरेटेड, बढ़ा चढ़ा के जब कोई चीज बोली जाए. मैंने इसको डिस्कस किया है, अलहदा मेरे इस पर वीडियो है हाइपरबोली पर, इस फिगर ऑफ स्पीच को क्या होती है, ये फिगर स्पीच मीनिंग क्या होता है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं. ठीक है, सेपरेट एक वीडियो है हाइपरबोली पर. तो एग्जैजरेट किया गया है पोएट के लव को. जैसे यहां पर कहा जाता है पिलग्रिम सोल इन यू. व्हाट इज पिलग्रिम सोल? ही कंपेयर्स हिमसेल्फ, बहुत सारे मीनिंग्स आप यहां पर निकाल सकते हैं. ही कंपेयर्स हिमसेल्फ विद अ पिलग्रिम. ठीक है, एंड ही कंपेयर्स हर विद द सॉइल. ओके, वेयर पिलग्रिम्स जहां जाते हैं. ठीक है, बट वन मैन लव द पिलग्रिम सोल इन यू. स्पिरिचुअल लव की बात कर रहा है. ठीक है, डिवाइन लव की बात कर रहा है. तो इतना बड़ा चढ़ा के वो अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को उसके सामने रख रहा है. जो अपनी मोहब्बत को डिवाइन कहता है, वो अपनी मोहब्बत को इतना प्योर कहता है कि जितना एक पिलग्रिम का सोल होता है. ओके, एंड वो अपनी बिलाउड को बहुत ही प्योर, बहुत ही डिवाइन, बहुत ही स्पेशल कहता है. सो दिस इज व्हाट हाइपरबोली, द एग्जांपल ऑफ हाइपरबोली हियर. देन moving to the next one, we have what, एक किस्म की एक टेक्निक यूज की है पोएट ने. इट इज कंट्रास्ट. It is throughout the poem. The poet compares his love with the love of those people who used to love, who used to approach Mount Gone. But he says that admiration was what? That was superficial love. वो superficial love था. जैसे moments of कह सकते हैं moments of glad grace. ठीक है, that beauty. ठीक है, उसको कंपेयर किया है अपने उस डीप एंड स्पिरिचुअल लव से, पिलग्रिम सोल. ओके, उससे कंपेयर करता है. सो देयर इज अ कंट्रास्ट ऑफ द पोएम. ओके, ही यूजेस दिस पर्टिकुलर थिंग आल्सो टू एम्फसाइज हिज पॉइंट, टू एम्फसाइज हिज लव फॉर माउंट गॉन. इट वाज दिस थिंग. देन नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एक और फिगर ऑफ स्पीच, साउंड, वो फिगर ऑफ साउंड आप कह सकते हो, उसको यूज हुआ है. जैसे एलिट्रेशन यूज हुआ है, कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस भी यूज हुआ है. इट इज व्हाट? इट इज एंड. ठीक है, एन साउंड जो आप देखेंगे, जैसे यहां पर है एंड साउंड है, नॉडिंग एंड साउंड है, बाय द फायर टेक डाउन एंड साउंड है. ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड जो ये कॉन्सोनेंट जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है. इट कैन बी एट द मिडल ऑफ द वर्ड और इट कैन बी एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड. ओके, तो this is consonants, the examples of consonants. Okay, then we have हम कुछ जैसे यहां पर भी consonants की example आपको मिलेगी. It is what? Chaining face, bending, and sound यहाँ पर है, and यहाँ पर भी and sound है, bending में यहाँ पर भी and sound है, ing and sound यहाँ पर भी है, down. ठीक है, beside glowing bars यहाँ पर भी and sound है. So it can be the example of consonants. और इस चीज को क्यों यूज किया जाता है? To create an effect, musical effect. Okay, जब आप इसको पढ़ते हैं तो आप कैसे पढ़ेंगे? And nodding by the fire, take down this book. साउंड जो है कंटिन्यूसली चल रही, तो एक रिदम क्रिएट करने की कोशिश करता है पोएट. सो इट वाज कॉन्सोनेंस. देन वी हैव सिंबलिज्म. सिंबलिज्म भी इसमें काफी ज्यादा यूज हुआ है. अगर आप देखेंगे, ग्रे symbolism is actually what when the poet says when he signifies one thing from the other, या आप ऐसा कह सकते हो कि when a poet goes beyond literal meaning, किसी चीज के जरिए से कोई और चीज समझाना चाहता है. ठीक है, it can be an idea, क्योंकि he wants to convince, or he wants to elaborate, or he wants to explain an idea through one thing. ओके, लिटरल मीनिंग से बियॉन्ड चल के जाता है. जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं सिंबलिज्म की. जैसे यहाँ पर ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप, ओल्ड ग्रे फुल ऑफ स्लीप, ये सब सिंबलिज्म की एग्जांपल्स हैं. ठीक है, ओल्ड ग्रे फुल ऑफ स्लीप, ये वर्ड्स हैं, दे सिंबलाइज दैट एल्डरली वुमन.
जब उसको कहता है when you are old and grey and full of sleep, जब तुम old हो जाओगी, grey means again old and full of sleep means about to die, ठीक है. When you are reaching that state of mortality, full of sleep also means about to die, means old, that elderly woman. ये words इसलिए use करता है, they symbolize an elderly woman, they symbolize elderly woman, okay, that old woman. ठीक है. तो एक एग्जाम्पल है सिंबलिज्म की. अगेन देयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंबलिज्म, नॉडिंग बाय द फायर. फायर इज व्हाट एंड नॉडिंग बाय द फायर इज it symbolizes warmth of the love or warm love. One thing, it can also symbolize the love that Maudgon once rejected. वो मोहब्बत जो उसने रिजेक्ट की थी, that fiery love which poet possessed for her. Okay, that fire symbolizes that fiery love, that passion, that passionate love which poet possessed for her and which she rejected. It symbolizes that thing. And then again, आप यहाँ आगे अगर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं mountains overhead and paced upon the mountains overhead. Okay, वो अपने love की बात करता है. How love fled and paced upon the mountains overhead. जब तुम वो बुक पढ़ोगी तुम्हें पता चलेगा हाउ लव फ्लैड, कि वो मोहब्बत कहाँ चली गई है. इट पेस्ड अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड, कहीं दूर पहाड़ों पर जा चुकी है. एंड हिड हिज फेस अमिड अ क्राउड ऑफ स्टार्स, और अपने आप को कहीं उन स्टार्स में छुपा लिया है, उन सितारों में से एक सितारा बन चुकी है. समथिंग विच कैन नॉट बी रीच्ड, विच यू कैन ओनली सी बट कैन नॉट रीच. सो दैट माउंटेन्स ओवरहेड, व्हाट डज इट सिंबलाइज? क्राउड ऑफ स्टार्स. ये माउंटेन्स ओवरहेड एंड क्राउड ऑफ स्टार्स, ये चीज क्या सिंबलाइज करती है? अ डिस्टेंट प्लेस, दूर की जगह, विच यू कैन ओनली सी बट कैन नॉट रीच, जहां पर वो माउंटगॉन पहुंच नहीं सकती है. सो लव, ही स्पीक्स ऑफ लव, मेरी मोहब्बत दूर जा चुकी होगी. ठीक है, जब तुम रियलाइज करोगी कि हाउ ट्रूली आई लव यू, दूर कहीं पहाड़ों में, दूर कहीं सितारों में, और तुम देख सकती हो उसको लेकिन तुम उसको हासिल नहीं कर सकती हो. ठीक है, तो क्राउड ऑफ स्टार्स एंड माउंटेन्स डिस्टेंट प्लेसेस को सिंबलाइज करता है, या आप कह सकते हो डेथ को सिंबलाइज करता है, जहां से कोई वापस नहीं आता है. आफ्टर डेथ यू कैन नॉट गेट अ पर्सन आफ्टर हिज डेथ. ठीक है, इट सिंबलाइजेस दैट थिंग. ओके, सो इट वाज symbolism. Then moving to the next one, the tone. अगर आप टोन की बात करते हैं इस पोएम में, टोन कैसा है, मूड कैसा है स्पीकर का. सो द टोन थ्रू आउट द पोएम इज व्हाट? वेरी अफेक्शनेट, फुल ऑफ लव बट रिग्रेटफुल, मेलनकलिक मूड है. ठीक है, ठीक है, सॉरोफुल मूड है. तो दिस इज द टोन ऑफ द पोएम. ओके, बड़ी अफेक्शनेट है, he expresses his love and very regretful. Okay, he wants to emphasize that my beloved will regret her decision of rejecting my love. So it is very melancholic mood. Okay, full of sorrow. तो टोन की बात हम करें तो ऐसी टोन और मूड इसमें पाया जाता है. Then we have the next thing we are going to discuss is what? It is आप कह सकते हैं metaphor. Another figure of speech is metaphor. Okay, metaphor अगर आप बात करते तो pilgrim soul can be one of the metaphors. Pilgrim soul is one of the metaphors. Why? Because it is एक ऐसा metaphor है यहां पर it refers to the spiritual journey or inner self. Spiritual journey or inner self. This pilgrim soul. It is compared to the spiritual journey of poet's love. Okay, it is that thing. तो metaphor यहां पर यूज हुआ है, this pilgrim soul. And यहां पर भी आप कह सकते हो मेटाफर है. इट इज ये जो यहां पर यूज हुआ है, sorrows of your changing face, sorrows of your changing face. ये जो है इट रेफर्स टू द चेंजेस. ठीक है, जो एजिंग ने, जो ओल्ड एज ने लाई है माउटगाउन पर, उसकी बिलाउड पर. ठीक है, these sorrows of are changing faces. This is what it refers to the old age, that aging, that changes. ठीक है, वो जो तब्दीलियां ओल्ड एज में आई हैं, तो मेटाफर उस चीज को रेफर यहां पर करता है. मेटाफर इसलिए यहां पर ये यूज हुआ है क्योंकि उसकी एजिंग जो है उसको कंपेयर किया गया है सॉरोज ऑफ द चेंजिंग फेस. ठीक है, सॉरोज ऑफ चेंजिंग फेस.
को कंपेयर किया गया है एजिंग के साथ, ओल्ड एजिंग के साथ. सो दिस इज अगेन अ मेटाफर. देन वी हैव अगेन, अगर आप यहां पर देखते हैं, इट इज shadows deep, your eyes had once. जब वो कहता है पोएट, when you're old and grey and full of sleep, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, about to die, nodding by the fire, कहीं फायर प्लेस पर बैठे होगे, nodding, हिलते हुए, कहीं पर अपने आप को, which and old or elderly people which they require that warmth very much, जब कहीं बैठे होंगे, take down this book, ये किताब मेरी लेना. which book? the book of poets poems, जो उसने उसके लिए लिखी है. and slowly read, फिर पढ़ना. and dream of the soft look, फिर देखना, अपनी उस जवानी को, उस youthful days को याद करना. your eyes had once, तुम्हारी eyes कितनी खूबसूरत थी, तुम देखना. and of their shadows deep, this shadows deep is metaphor. shadows deep, आईज को शैडोज डीप के साथ कंपेयर किया गया है. ठीक है. डार्क सर्कल्स, डीप शैडोज मींस दोज आईज. ठीक है, क्योंकि उस वक्त जब इंसान बूढ़ा होता है तो इंसान की आईज कैसी हो जाती हैं, डीप, शैडोवी एंड ऑल दैट. सो हर आईज हैव बीन कंपेयर्ड टू, ये जो शैडोज डीप को कंपेयर किया गया है उसकी आईज के साथ. ठीक है. ब्लैक, shadows deep means black, and उन eyes को उन black shadows deep के साथ कंपेयर किया गया. अगेन मेटाफर. ओके, तो आप यहां पर भी कह सकते हो कि जब ये एक मेटाफर यहां पर भी यूज हुआ है, अगर आप कहो that how love fled and how love fled, love किस तरह से चला गया. ठीक है. love fled, ठीक है, उड़ के चला गया. ठीक है. love is compared with a bird, कि जिस तरह से एक परिंदा उड़ के चला जाता है जो कभी आपके पास वापस नहीं आएगा, इसी तरह से जो लव है, मेरी मोहब्बत, ये भी तुम देखोगी कि फिर तुम्हें मालूम पता चलेगा, लेकिन तब तक मेरी मोहब्बत जो है तुम्हारे लिए, इट वुड हैव फ्लड, ये जा चुकी होगी. सो लव कैन बी कंपेयर्ड विद अ बर्ड. सो अगेन इट कैन बी अ मेटाफर. Okay, so metaphor is clear. Then we have another poetic device, and that is enjambment. Enjambment, मैंने पहले भी डिस्कस किया. what is enjambment? Enjambment is when when the meaning of the verse is not clear unless you go before that particular verse, before that particular line, or after that particular, जिसका मीनिंग कनेक्टेड होता है उससे पहली वाली लाइन के साथ या बाद वाली लाइन के साथ. तो अगर आप देखोगे थ्रू आउट द पोएम यहां पर जो है enjambment यूज हुई है. ठीक है. जब देखिए, जब यहां से स्टार्ट करता है, when से शुरू होता है ये वाली लाइन, when you are old and grey. जब आप आमतौर पर बात करते हो, किसी को कहते हो कि जब मैं आपके घर आऊंगा, तो अगला बंदा कुछ और एक्सपेक्ट करता है. ये कंप्लीट मीनिंग नहीं है इसका. अगला बंदा कुछ और एक्सपेक्ट करेगा, ये आके क्या कहेगा, जब मैं आपके घर आऊंगा तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा. नाउ दिस इज कंप्लीट. तो इसी तरह से ये सारी लाइंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है मीनिंग में. When you're old and grey and full of sleep, जब तुम old, grey, full of sleep, बूढ़े हो जाओगे, तो मीनिंग क्लियर नहीं है. It requires other line. And nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep. How many loved your moments of glad grace? ये भी कंप्लीट नहीं है. तो थ्रू आउट द पोएम आप इस एंजम्मेंट को देखोगे कि एक लाइन अपने आप में क्लियर नहीं है, उसका मीनिंग, उसका मतलब जो है, इट रन्स through the poem, it runs through the other lines also. So enjambment is there. Then we have another poetic device, and that is personification. Personification use हुआ है, जैसे यहां पर कहा है how love fled. ठीक है. यहां जैसे कहा है and loved the sorrows of your shining face and bending down beside the glowing bars murmur a little sadly how love fled. तुम्हें पता चलेगा, तुम फिर उस वक्त जान जाओगी मेरी पोएम्स पढ़कर, मेरी किताबें पढ़कर, कि हाउ लव फ्लड एंड पेस्ड अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड. Personification is when when the qualities or characteristics of living being human being are attributed to non-living objects or ideas. ठीक है. जब नॉन लिविंग किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को या किसी आइडिया को ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है जैसे कि वो लिविंग बीइंग है, जैसे कि वो ह्यूमन बीइंग है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन. तो यहां पर लव इज पर्सोनिफाइड. हियर इट इज सेड हाउ लव फ्लड. किस तरह से लव, मोहब्बत जो है, लव
किस तरह से इसने फ्लड किया, किस तरह से लव चला गया, ठीक है। दूर, पेस्ड, बहुत तेजी से, अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड, कहीं पहाड़ों में, कहीं एमिड द क्राउड ऑफ स्टार्स, ये चला गया, ठीक है। सो लव इज अ फीलिंग, ये एक फीलिंग है, फीलिंग। तो हाउ कैन फीलिंग फ्लाई, हाउ कैन इट फ्लड, जैसे इसने कहा है हाउ लव फ्लड, तो लव को डिस्क्राइब किया गया है एज अ लिविंग बीइंग, सो इट इज personified here, personification here, so it was personification. Then moving to the next one, rhyming scheme. अगर आप देखेंगे इस poem rhyming scheme क्या यूज हुई है, अगर आप देखोगे quatrains यूज हुए हैं। there are 3 stanzas, 1 2, इसकी 4th लाइन यहाँ है, एंड 3, 3 stanzas इसमें यूज हुए हैं, एंड quatrains यूज हुए हैं। क्वाट्रेन आप ये देख सकते हो, क्वाट्रेन्स मीन्स ग्रुप ऑफ 4 लाइन्स, ठीक है। 4 लाइन्स इसमें यूज हुई हैं। जब एक स्टैंजा 4 लाइन का हो, दैट इज अ क्वाट्रेन। और इसकी राइम स्कीम क्या है, इट इज व्हाट, स्लीप, ए, बुक डिफरेंट है, बी, लुक, ये भी बी के साथ रिजेंबल करता है सेकंड लाइन के साथ, एंड 4th किससे रिजेंबल करती है, ए के साथ, डीप स्लीप, ठीक है। ए बी बी ए, ठीक है। इसी तरह से सेकंड लाइन में भी है सी डी डी, जैसे ग्रेस, ट्रू, डिफरेंट, यू जो है ट्रू के साथ रिजेंबल करता है, तो डी आपने इसको दिया, तो ग्रेस इसको आपने सी दिया। तो यहां पर इसके साथ कौन राइम करता है, फेस, सी डी डी सी, ओके। देन वी हैव अगेन ई बार्स, एफ एफ ई, बार्स, फ्लैड हेड, ओवरहेड, फ्लैड हेड, सेम एफ एफ, बार्स के साथ राइम करती है स्टार्स, ई और ई आपने इनको दिया। सो इट इज व्हाट, ए बी बी ए, कंसिस्टेंट राइम स्कीम इसको हम कहते हैं, ठीक है। सेम राइम स्कीम तीनों स्टैंजाज में, दिस इज कंसिस्टेंट राइम स्कीम। जब डिफरेंट राइम स्कीम हो, एक स्टैंजा में डिफरेंट हो, दूसरे में डिफरेंट हो, तीसरे में डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड स्कैटर्ड राइम स्कीम, जो यहां नहीं है, यहां पर सेम है, सेम पैटर्न है, ए बी बी ए, सी डी डी सी, और नेक्स्ट क्या है, इट इज व्हाट, ई एफ एफ ई, सेम है। सो इट इज कंसिस्टेंट राइम स्कीम पोएम ने यूज की है, एंड इट गिव्स इमोशनल एंड दैट टच टू द पोएम। एंड then the last one अगर हम डिस्कस करेंगे, it is what, the meter of this poem, इसमें मीटर के कौन सा यूज हुआ है, तो इस पर मैंने मीटर क्या होता है क्या नहीं, सिलेबल्स क्या होते हैं, मैंने इस पर वीडियो बनाई है। अभी तक के लिए बस इतना ही कि मीटर इसमें कौन सा यूज हुआ है, इसमें इयाम्बिक पेंटामीटर यूज हुआ है। एवरी लाइन कंसिस्ट ऑफ 10 syllables, ठीक है, which means there are 5 feet and the pattern is what, unstressed syllable followed by stress, unstressed followed by stress. So the meter is iambic pentameter. So this was the whole poem, poetic devices in this poem. हमने इनको डिस्कस किया. Hope you like the video. Keep sharing my video. Thank you very much.